প্রথম মতন থ্যাংক ইউ कोई ऑनलाइन दर्शक बच्चा मैसेज आवश्यक है बताइए अपना मैसेज आवश्यक है Tom kalau cakap ya Tom kalau cakap bottom dapat stand juga
امام جلال الدین محمد بن احمد محلی اور امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی کی مشترکہ کاوش سے اس سعادت کو پانے کے لیے ہم اپنے درمیان ہمارے ایسی مقدس پاک اور جامع شریعت و طریقت ہستی کو اپنے بیچ پا رہے ہیں، جن کی مؤمنانہ اور مخلصانہ نگاہوں سے ہزاروں گزشتہ راہ انسانوں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، جس نے اپنی علمی و عملی زندگی میں مختلف پہلوؤں سے اشتغال علوم اور قوت کو اور ملت اسلامیہ کو سیراب کیا اور کر رہے ہیں۔ بالخصوص درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے میدان میں ان کی ہراقت خدمت اظہر من الشمس ہے۔ حضرت کے اظہار و قربانی اور خلوص و محبت کی ایک الگ کہانی ہے اور طویل داستان ہے۔ اس سے میری مراد جامعہ علوم القرآن زرمسر کے استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دعوت برکاتہ محمد فیوز کی ذات گرامی ہے۔ ہم حضرت والا کا جامعہ میں پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا نے تناظر مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری ہمت افزائی فرمائی، ہمارے دلوں کو توانائی اور حوصلوں کو تازگی بخشی۔ وہاں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہاں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی دیکھتے ہیں۔ اب ہم حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا جلالین شریف کا آخری بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية أو مدنية 5 آيات نزلت هذه والتي بعدها لما صلى بيد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في بكر به 11 عقدة فعلمه الله بذلك ولمن به فأوتر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين فكان كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة ووجد حكمة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما رشد من حمار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا أظلم بالقمر إذا غاب ومن شر النفاثات في السواقر تنفخ التي تأكلها بالغيب تنفخ فيها بشيء تقوله من وقال الزمخشري وهو كبنات اللبيد المذكور ومن شر حاسد إذا حسد قد فرمسته وابنة ممتزه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية ومدنية 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم قلت بالذكر تشريفا لهم مناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم ملك الناس إله الناس بدلا يوصف له ودفع بيانه وأزل المضاف إليه فيه ما زاد للبيان من شر وسواس الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسة به له الناس لأنه يخمس ويأخر عن القلب كلما ذكره الله الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفروا عن ذكر الله من الشيطان الموسوس أنه جني
حديث كقوله تعالى يا من الإنس والجن من الجن بيان له والناس مدح على الوسواس وعلى كل يشمل شر الذكر ونادهم بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس إنما يوسوس في صدورهم الجن ووجب بأن الناس يوسوسون إذا بمعنى يليق بهم في الظاهر ثم تسير وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير الموصول إلى آخرها. ويقدر في أولها قول ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بقولها من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله أعلم على المعبود بحق رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وقلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجبه الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، ملك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا غير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq Makkiyah. Suratul Falaq Makkiyah atau Madaniyah. Khamsu ayatin nazalat hadhihi wa hadha لما سحرت لطيف اليهودي. سورة فلق اور سورة ناس ان دونوں کا اساتذہ کے آپ کو بتایا ہوگا کہ جلال الدین محلی نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا سورہ کہف سے لے کر کے، اور اس کے بعد میں اس طرح میں پوری سورہ ناس پر، اور پھر بعد کے اندر میں سورہ فاتحہ سے اس کو شروع کیا تھا. اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے، بعض علماء کا یہ قول ہے کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات بھی جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کر دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ تفسیر مکمل ہو ان کی وفات ہو گئی. یہ جلال الدین محلی یہ استاد ہے، اور جلال الدین سیوطی یہ شاگرد ہے. یاد رکھنے کے لیے ترتیب اس طور پر سمجھیں
کہ حروف ہجائیہ الف با کی جو تختی ہے اس کے اندر میں پہلے سین ہے، الف با تا فاصل رہیں گے تو سین آئے گا اور میم بعد میں آتی ہے۔ حروف ہجائیہ کے اندر میں پہلے سین آئے گی، اس کے بعد میں میم آئے گا۔ تو گویا یہ سمجھو کہ نصف اول یہ سیوطی کی ہے اور نصف ثانی جو ہے وہ محلی کی ہے۔ یہ ابھی موجودہ کتاب کے اعتبار سے، البتہ لکھنے کے اعتبار سے جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ معلوم اس الہامی چیز کی وجہ سے انہوں نے شروع سے تفسیر سورہ کہف سے لکھنا شروع کی۔ سورہ کہف سے لے کر کے الناس تک تفسیر پوری ہوئی، اس کے بعد میں سورہ بقرہ کی کچھ آیت بھی انہوں نے تفسیر کی اور اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت میں محلی کا انتقال ہوا، یعنی استاد کا جب انتقال ہوا تو سیوطی کی عمر 15 سال کے قریب تھی۔ اب اس کے اوپر میں آپ دیکھیں کہ جلال الدین محمد بن احمد بن محمد المحلی اس کے بعد میں ہوا پہ لکھا ہے 864 کے اندر 864، اور جلال الدین جو سیوطی ہے ان کی پیدائش 850 میں ہے، 50 میں ایک کا یہ ایک اور یہ 15 سال کی عمر ہوئی۔ جس وقت میں انتقال ہوا تو سیوطی کی عمر 15 سال کی تھی۔ اس کے بعد میں 6 سال کے بعد ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 7 سال کے بعد سیوطی نے اپنے استاد کے طرز کے مطابق اور طریقے کے مطابق کتاب لکھنا شروع کیا۔ آج اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ بھئی اس کے اول سے محلی کی کتاب ہے، نصف اول سیوطی کی ہے اور نصف ثانی جو محلی بتایا جائے اور ایسے کتاب دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ سیوطی کی لکھی ہوئی کون سی ہے اور محلی کی لکھی ہوئی کون سی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد اس سے شاگرد بڑھ جاتا ہے، کہاوت ہے کہ کبھی استاد جو ہے گڑ رہ جاتا ہے اور شاگرد جو ہے وہ شکر بنتا ہے، شکر بن جاتا ہے۔ جلال الدین محلی نے جتنی کتابیں نہیں لکھی اس سے زیادہ جلال الدین سیوطی نے لکھی۔ ایک کثیر التصانیف کے اندر میں 600 کتابوں کا تذکرہ کیا ہوا، 600 کتابیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے اندر میں ایسی برکت عطا فرمائی۔ اب آج کا جو سبق ہے یہ دونوں کا مجموعہ ہے، فلق اور ناس، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کس کی؟ جلال الدین۔ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے جلال الدین محلی، اور ناس کا فلق اور ناس لکھی ہوئی ہے جلال الدین سیوطی۔ یہ 3 صورتیں ہیں، دو کا تعلق ایک استاد سے اور ایک کا تعلق ایک استاد سے۔ تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا مختصر عرض کر دوں کہ ہر زمانے کے اندر میں، ہر دور کے اندر میں زمانے کے حالات کے مطابق علماء کرام نے تفسیریں لکھی، اور تفسیر کا یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ قرآن پاک کے رموز اور اسرار اور بھید یہ جو وغیرہ ہے یہ ختم ہونے والے نہیں۔ جس دور کے اندر میں جس چیز کا رواج تھا اس دور کے مطابق علماء نے جو ہے تفسیریں لکھی۔ کبھی منطق اور فلسفہ کا دور تھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلالت یہ تفسیر رازی لکھی۔ تفسیر رازی 30 جلدوں کے اندر میں لکھی۔ تفسیر رازی پڑھنے والا جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنی گہرائی کے اندر میں اترتے ہیں اور اتنے وسیع پھیلتے ہیں کہ مطالعہ کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سی آیت کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ اس کے اندر میں منطق ہے، اس کے اندر میں فلسفہ، اس لیے بہت سے لوگوں نے تفسیر رازی کے بارے کے اندر میں تفسیرہ کی، اور ہمیں رائے یہ ہے کہ وہ تفسیرہ جو کیا وہ غلط تفسیرہ ہے۔ تفسیرہ یہ کیا،
التفسیر الرازی فیہ کل شیء الا التفسیر. التفسیر الرازی فیہ کل شیء. تفسیر رازی کے اندر میں سب کچھ ہے الا التفسیر. نہیں ہے تو تفسیر ہی نہیں. یہ غلط تفسیر ہے. اس لیے کہ منطق اور فلسفہ وغیرہ کے اندر میں جب وہ تردید کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. ایک آیت اور اس کے ضمن کے اندر میں 15 صفحے 20 صفحے 25 صفحے لے جاتا ہے تو مطالعہ کرنے والا بھول جاتا ہے کہ کون سی آیت کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں. ایک لطیفہ سنا. مولانا حسین احمد یہ کتاب تو آپ کے اساتذہ ہی پڑھائیں گے, ہم تو آپ سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو بس بول دیتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد تھے مسلم شریف کے, اور مسلم شریف کا پرچہ تھا امتحان گاہ کے اندر میں. تو مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ دورے کے لیے نکلے, دیکھیں بھائی امتحان کیسے ہوتا ہے وغیرہ. تو دیکھا کہ علامہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سارے طلبہ مل کر کے پرچے کو حل کر رہے ہیں امتحان گاہ کے بیچ کے اندر پرچہ حل کر رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ علامہ کے پاس میں گئے, علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہ علامہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن امتحان ہو رہا ہے. کس کا امتحان؟ لیکن مسلم شریف کا. لیکن یہ امتحان یعنی سارے دوارا کے طلبہ بیٹھ کر کے پرچے کو حل کر رہے ہیں. یہ حل کرنے سب مل کر کے تو علامہ نے فرمایا کہ کتب خانہ کی ساری کتابیں لا کر کے یہاں حل کرنا چاہیے, حل ہونے والا نہیں. ایسے منطق اور فلسفہ کا ایک لطیفہ ہے کہ ساری چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن کے بعد جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہے لیکن کے بعد جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کو یہ سمجھو کہ کسی سے پیسوں کی ضرورت پڑی یا کوئی کام ہوا, آپ کو ماشاءاللہ تو ہمارے بڑے ہیں, متولی ہیں, یہ امام ہیں اور ماشاءاللہ قابل اکرام ہے, قابل احترام ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ آپ کو چڑھائیں گے عرش معلیٰ میں, لیکن پیسہ نہیں. اب تشریح سمجھ آئی. پہلے تو سارا ٹھیک تھا, جو آپ کی تعریف کرے گا کہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن پیسہ نہیں. یہ ان کا مقولہ ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہے لیکن کے بعد جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا نہیں. یہ منطق اور فلسفہ کا دور تھا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا دور ہے, اور درر المنثور لکھی گئی, ہر زمانے کے اندر میں کتابیں لکھی گئی. ایک بات میں جو اصل بتانا چاہتا ہوں, یہ تمہید اس لیے قائم تھی کہ ابھی فی زمانے نہ حال, اس زمانے کے اندر میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے. اب ٹریکٹر کنڈکٹر کا زمانہ ٹر کر کے ختم ہو گیا. اب زمانہ کس کا؟ کمپیوٹر کا زمانہ, اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو شیخ عبد المجید زندانی یمنی اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. ابھی اسی سال فروری کے مہینے کے اندر ان کا انتقال ہوا. ابھی اس سال کے اندر ان کا انتقال ہوا. وہاں سعودی عرب کے اندر میں 2 مرتبہ ہمارے شیخ کے لڑکے کے ساتھ ان کی مجلس میں حاضر ہونے کا بھی موقع ملا تھا. آدھا گھنٹہ بیان کرتے تھے, تفسیر آدھا گھنٹہ, اور پھر آدھا گھنٹہ لوگ اعتراض کریں اور ان کا جواب دیں. عورتیں بھی ہوتی تھی پڑوس کے اندر, مسجد کے بغل کے اندر میں, وہاں سے چٹھی آتی تھی لڑکیوں کی طرف سے, وہ اعتراض کر اور پھر وہ جواب دیتے. تو باقاعدہ منتشر یاد 11 جلدوں کے اندر میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, الاعجاز العلمی فی القرآن والسنہ. الاعجاز العلمی فی القرآن والسنہ 11 جلدوں کے اندر میں لکھی ہوئی. قرآن پاک کے اندر جتنے بھی مقامات ہیں, ان تمام مقامات پر وہ لوگ گئے. ایک جماعت تھی, اس کے اندر میں جامعہ شیخ اور علماء, محدثین اور مفسرین, یونیورسٹی جامعہ ازہر کے انجینئر اور ڈاکٹرز وغیرہ جو ان کے ساتھ میں پورا قافلہ لے کر کے یہ لوگ تحقیق کرنے کے لیے نکلتے تھے. یہ قرآن کے اندر میں ہذا حق فرات وہذا ملح اجاج کہاں پر ہے؟ ساؤتھ افریقہ کے اندر میں, ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ہے,
और केप टाउन से समंदर के अंदर में 25 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में ये यहाँ पानी अगर उठाओ तो मीठा और यहाँ से उठाओ तो पानी खारा, ये इधर से उठाओ तो मीठा और इधर से उठाओ तो खारा। ऐसी जगहों में पहुंच करके उन्होंने तरकीब की, ऐसी किताब लिखी हुई। ये कुरान पाक ने एक मिसाल दी है, इसकी अपने कुफ्र की और शिर्क की एक मिसाल दी है जो मुझे पसंद आई, तो मैंने ये सोचा कि आपको भी बताऊं। ये फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, सूरह अनआम की 125वीं आयत है। इस पर भी उन्होंने कलाम किया हुआ है अल्लामा अब्दुल मजीद ज़नदानी रहमतुल्लाह अलैह के, जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने का इरादा करता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का इरादा करता है, यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करना चाहता है, यजअल सदरहु दय्यकन हरजन, अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने को तंग और हरज करने में डाल देता है। कान्नमा यसअदु फिस-समा, ये है असल में ये बात बताना चाहता हूँ, वो ये कान्नमा यसअदु फिस-समा, ये काफिर और मुशरिक कुफ्र और शिर्क के साथ में अपने आप को इस तौर पर महसूस करता है, कान्नमा यसअदु फिस-समा, गोया कि वो आसमान के ऊपर में चढ़ रहा है। अब ये कुरान कब लिखा गया, नाजिल कब हुआ? 1450 साल में। जिस वक्त में कुरान पाक नाजिल हुआ उस वक्त में एक जहाज नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, ये जितने भी मोटर गाड़ियां वगैरह थे कुछ भी नहीं थे। लेकिन मिसाल क्या दी, कान्नमा यसअदु फिस-समा। अब आप जब सफर करो या जिन लोगों ने सफर किया है, ये हवाई जहाज समंदर हवाई जहाज दौड़ता है और फिर में दौड़ता है 300-350 स्पीड तक में दौड़ता है, फिर दौड़ते जो है पहियों को खींच लेता है, फिर कुछ दौड़ने के बाद में पीछे वाले पहियों को खींच लेता है, और जितना बुलंदी तक उसको जाना होता है इस तौर पर बुलंदी पर चढ़ता रहता है, जो 30,000 फीट 40,000 फीट जो जाना होता है ऐसा ही जाता है। इस चढ़ने के वक्त के अंदर में आदमी के दिल के अंदर में एक किस्म की घुटन महसूस होती है और बहुत से लोगों को चक्कर आता है। ये जो कैफियत होती है, यही कैफियत होती है किसकी, जो ईमान वाला नहीं है उसकी कैफियत होती है। इसे अब्दुल मजीद ज़नदानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इसी तरीके से वयख्लुकु मा ला तअलमून वल खैला वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना वयख्लुकु मा ला तअलमून। सहाबा किराम के ज़माने के अंदर कौन सी गाड़ियां थी? टेम्पो कौन थे? वो भी टेम्पो, घोड़ा है, और 20 वाला नहीं, बीच में भटकुल लजी, कौन? खच्चर, भटकुल लजी है। कैसे भटकुल लजी? अफ्रीका के अंदर में ये गोरे लोग शादियां करते हैं कालियों से, गोरे लोग शादियां करते हैं किनसे? काली औरतों से शादी करते हैं। और हमने देखा बाकायदा गोरा और काली हाथ में हाथ डाल के फिरते हैं, तो हमने कहा अजीब लगता है। कौवा और कबूतर मालूम नहीं, कौवा और कबूतर या कौवा और बगला, उनसे जो औलाद पैदा होती है उनको कलट कहा जाता है। कलट, कलट क्या? यानी ना बाप जैसा गोरा और ना माँ जैसा काला, बीच का फटकुल लजी, इनल लजी। अब काले को सफेद को दोनों को साथ में मिला, क्या कलर पैदा होता है? वही कलर होता है, कलट होता है। तो क्या है? वल खैला वल बिगाल, बिगाल को बीच में इसलिए लाए, बिगाल ये मेरी राय है भाई, वल खैला वल बिगाल वल हमी, बीच में उसी को लाए। बाप घोड़ा ने माँ गधी, तो गधी जैसा नीचा नहीं होता और घोड़ा जैसा ऊंचा भी नहीं होता, बीच का होता है। कि मैं तो कहा करता हूँ कि 3 4 व्हील गाड़ियां थी जिसके अंदर में गैस की जरूरत नहीं, पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत नहीं, सोलर की भी जरूरत नहीं। सऊदी अरब के अंदर में गधे
गाड़ी होती है, गति गाड़ी, खच्चर की गाड़ी होती है, सिग्नल जो होता है जब लाल हो जाता है तो वहां पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। एक मरतबा मैंने किसी अपने इंडियन पाकिस्तान जब मैं शुरू में गया तो पूछा, मैंने कहा ये क्या है कि लाल सिग्नल देखकर ये गाड़ी कैसे खड़ी हो गई? बोले इनको तालीम दी जाती है, उनको शुक्र हो गई इसको तालीम दी जाएगी, इसको गधे और खच्चर को तालीम दी जाएगी। कैसी कि लाल सिग्नल देख करके खड़ा हो जाता, चलते चलते कोई लाल बता करके खड़ा हो जाएगा तो इसके फिर कुछ अरसा हुआ तो एक बदवी यानी जंगल में रहने वाला देहाती वही हमारी दुकान के ऊपर में आया तो मैंने उससे पूछा तो कहा कि तालीम वाली का कोई मसला नहीं है, 2 पाँव के बीच के अंदर में लकड़ी मारते हैं तो चलता है, गिर 2 पाँव के बीच के अंदर में लकड़ी मारो तो चलता है, अब चलता है और 2 पाँव के बीच के अंदर में लकड़ी मारो तो फिर खड़ा हो जाता है, बस इससे ज्यादा कोई तालीम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयखलुकु मा ला ताअलम। उस वक्त में जब कुरान पाक की आयत नाजिल हो रही थी ये 3 किस्म की गाड़ियां थी। आज अगर सहाबा किराम में से कोई आवे और देखे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने वयखलुकु मा ला ताअलम, अल्लाह ताला ऐसी सवालियों को पैदा करेगा सहाबा किराम को मुखातब होकर के अल्लाह ने फरमाया कि तुम नहीं जानते। कुरान के अंदर में कि खुसूस से मौरिद का एतबार नहीं होता, इसका एतबार होता है, खुसूस मौरिद का एतबार नहीं होता, एतबार होता है नहीं होता, खुसूस मौरिद का एतबार नहीं होता, उमूमी अल्फाज का एतबार होता। ये आयत क्यों नाज़िल हुई उसका एतबार नहीं है, उमूमी अल्फाज का एतबार। वही अल्फाज कुरान पाक के हमारे पास में मौजूद है। इतनी सारी सवारियां हो जाने के बावजूद अगर थोड़े दिन पहले आया था कि ये अमेरिका और चाइना और रूस 3 मुल्कों ने मिलकर के एक हवाई जहाज बनाया हुआ है। हवाई जहाज 1 घंटे के अंदर में 36,000 किलोमीटर की मसाफत तय करने वाला, 1 घंटे के अंदर कितना 36,000 किलोमीटर। तो बात मजाक करने वालों ने लिखा कि दिल्ली से अमेरिका जो है वो 18 किलोमीटर है, तो आधे घंटे में जाएगा आदमी अमेरिका और आधे घंटे के अंदर में वापस आएगा। फिर भी आज अच्छा 600 की स्पीड में तो गाड़ियां चलती है, 300 350 की स्पीड के अंदर में गाड़ियां चलती है और हमारे यहाँ गाड़ियों को भगाते नहीं, इसलिए एक्सीडेंट का खतरा होता है। और गवर्नमेंट इसलिए रास्ता नहीं बनाती है, रास्ता बनाएगी तो गाड़ियां बहुत भागेगी तो एक्सीडेंट होगा नहीं, ये ख्याल है हमारे। और अगर तुम जाओ किसी ऑफिस के अंदर में कोई फलाना रोड बना हुआ है, देखो ये बन गए है, रोड बना हुआ होगा कागज के ऊपर में बना हुआ होता है, 2 मरतबा 3 मरतबा कागज पर बनता है और 4थी मरतबा जमीन पर बनता है। जब पेट भर जाता है और एसिडिटी होती है वयखलुकु मा ला ताअलमून आज भी कुरान का चैलेंज है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता था कि वीडियो कॉल के जरिए से एक नहीं कितने मुल्कों वालों के साथ में बात होती है, लड़का अमेरिका में, लड़की ऑस्ट्रेलिया में और दामाद मालूम नहीं इंग्लैंड के अंदर में और कोई इधर में कोई बॉम्बे, 4-5 ग्रुप मिलकर के बातें नहीं करते हैं, खाते चमची भी देते बैठे वयखलुकु मा ला ताअलम। ये अल-एजाज़ इल्मी फिल कुरान व सुन्नह इस दौर और इस जमाने के एतबार से लिखी है। मैं जिस मजलिस के अंदर में था उस मजलिस के अंदर में हमारे साथी भी थे, लबनानी साथी भी थे। तो ये 25वें पारे की आयत है, हाफिज ना होने की वजह से मुझे याद नहीं है, लेकिन दूसरे सितारों के ऊपर में भी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की हुई है, दूसरे सितारों के ऊपर मखलूक पैदा की हुई है। एक लबनानी ने सवाल किया था कि क्या मुमकिन है कि किसी और सितारे के ऊपर में जो मखलूक है इस जमीन के मखलूक के साथ में मिले? तो हजरत शेख ने नवल्लाह मरकज़ा ने जवाब दिया था कि अक्लन को पूछता है कि अक्ली तौर पर मुमकिन है कि नहीं, मैं तुझे नकली तौर पर कहता हूँ वहुवा इदा यशअउ अला जमइही लक़ती, इस मखलूक को इस मखलूक के साथ में मिलाएंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि सऊदी और यमन की लड़ाई है, इसके अंदर इस किताब के ऊपर में डेढ़ लग गई। मैंने बहुत तलाश जिद्दा के अंदर में बहुत तलाश किया, जिद्दा में दमाम में। बाद लोगों ने कहा कि कुवैत में मिलती है तो हमारे दोस्तों को खत
भी लिखा और मैसेज भी किए, कहीं पर भी नहीं मिलती। अल-इजाज़ुल इल्मी फिल कुरान व सुन्नह अरबी के अंदर में भी है, इंग्लिश के अंदर में भी, यूट्यूब के ऊपर में है, सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर में। जरूरत है कि इस जमाने के अंदर में ऐसी किताबों का मुताला करने ताकि हम पता चले कि कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और ये जितने भी सितारे हैं, सैयारे हैं, या ग्रह जिसको बोलते हैं, सैटेलाइट वगैरह, ये सारी चीजें उस किताब के अंदर में मौजूद है, लिखी हुई है। ये आपकी ज़राफ़त के लिए थोड़ा सा बता दिया। अब जो हुक्म था, ये हुक्म था सबक पढ़ाने का। तो सूरह फलक और सूरह नास किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब शुरू हुई है बिस्मिल्लाह से। हमारे उस्ताद थे रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि कुरान पाक जिंदगी बसर करने के लिए काफी है, बस किसी और की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को शुरू किया किससे? बिस्मिल्लाह के पास। खत्म किया किस पर? वन्नासी की सीन पर, बस यही काफी है। अब अगर कुरान पाक को समझना है और ताकत अगर पैदा करना है तो बुखारी शरीफ की इब्तिदा हुई बा से और इख्तिताम हुआ सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम मिम पर, बम बा से शुरू हुई और खत्म हुई किस पर? मीम। यानी कुरान पाक को समझने के लिए अगर ताकत चाहिए तो उसके लिए हदीस है। ये तो ये दोनों सूरतों का जो शान नुज़ूल है ये है कि लबीद बिन आसम के कहने की वजह से उसकी लड़कियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। इनके खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जादू कर, हम तुमको 3 अशरफिया देंगे। जो है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इन 3 अशरफ मुकाबले के अंदर में जो है जादू किया जाए। तो लबीद बिन आसम के कहने की वजह से उसकी लड़कियों ने जो है जादू किया। जादू का असर तबई तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। तबई तौर पर मतलब जैसे बुखार आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुखार है, आपको थकान लगती है, और इसी तरीके से आपका दंदान मुबारक शहीद किया गया गज़वे ओहद के अंदर में। ये तबई तौर पर जो है असर होता है। वही के उतरने और वो ताबे कर लिया होगा और अपनी मनमानी करवाई होगी, ऐसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा असर ये हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कोई काम अगर किया हुआ ना हो और ख्याल आ रहा है कि मैंने कर लिया, कोई काम नहीं किया है और ये ख्याल आ रहा है कि मैंने वो काम कर लिया, बस इससे ज्यादा कोई असर हुआ नहीं। लेकिन इसकी वजह से, सिहर की वजह से, जादू की वजह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पिघलती जाती थी, घुलती जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते। लेकिन इस सिहर की वजह से परेशानी का इल्म किसी को भी नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की कैफियत के अंदर में काफी अरसे तक रहा। बहुत से लोगों ने लिखा कि 40 दिन रहा, और उसके अंदर में बहुत से लोगों ने लिखा 6 महीने तक रहा, किसी ने कहा कि 40 दिन तक ज्यादा रहा। कि इसके अंदर में भी 40 दिनों के अंदर में भी आखिरी 3-4 दिन है वो ज्यादा तकलीफ दे रहा। मगर जो भी कॉल हो, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के अंदर में 2 फरिश्ते आए इंसानी शक्ल के अंदर। एक शेरानी खड़ा हो गया, दूसरा पाइके के पास में खड़ा हो गया, और एक दूसरा सवाल करने लगा कि इनको क्या है, इनके ऊपर में जादू किया गया। किसने जादू किया है? लबीद बिन आसम ने किया। क्या जादू किया हुआ है तो वो सारी तफसील बताई। उसके बाद में ये ख्वाब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला आपके हमसुल्फ़ हैं। रिश्तेदारियां भी याद रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारियां किन के साथ में क्या क्या है वो भी याद रखनी चाहिए। ज़ुबैर इब्न अव्वाम हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के शौहर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसुल्फ़, उनको भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा, और भी 2-3 सहाबा थे उनको भी भेजा। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। ये कबीले बनी ज़ुरैक के अंदर में एक कुआं था, बीर दरबा कहा गया कि उसके अंदर में
किया था, एक यहूदी लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता जाता रहता था, उसको कुछ पैसा दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंघा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी किए हुए बाल, दंदाने वगैरह ये मंगवा लिया। और उसके बाद उन लोगों ने जादू किया। ये जैसे वतर लिखा हुआ ये आंख है, आंख यानी आमतौर पर मुफस्सिर ये लिखते हैं कि ये जानवरों के बदन के अंदर में एक रग होती है पतली सी और बड़ी मजबूत होती है, उसी को उन्होंने काम में लाया, काम में लगाया था। उसके ऊपर में गिरें लगाई थी, 11 गिरें लगाई थी। और सारी रिवायतें जो अलग अलग किस्म की रिवायतें आती है उसके अंदर में ये भी है कि एक पुतला बनाया था और उस पुतले के अंदर में 11 सुएं लगाई हुई थी और जो आंख थी या बड़ा मोटा धागा था उसके ऊपर में 11 गिरहें लगाई हुई थी। सूर्य फलक और नास करने में कितने आयतें हैं? 11 आयतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई कि पानी निकाला गया, पानी निकालने के बाद में वहाँ दबाया हुआ था ये खजूर के खोसे के साथ बांध करके, फिर उसको जब निकाला गया तो पुतले के अंदर में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते और सुई को निकालते और एक गिरा को खोलते। इस तरीके से 11 सुई निकाली गई और 11 गिरा जो थी वो खोल दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो गए कि जैसे किसी को रस्सियों के अंदर में बांध दिया गया और जो घुटन महसूस करता हो एकदम से निशात के साथ में खुल गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अच्छा उसको बुलाया भी गया। ये स्मृति की ये भी तरतीब है, वो बैन यदैहि, उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लाया गया। उसने अपने गुनाह का इत्तिकाब भी किया और अपने जुर्म का उसने इत्तिकाब भी किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है फिर आप मुझसे इंतकाम क्यों नहीं लेते, बदला क्यों नहीं लेते? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी तो मुझे इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। ये मिजाज नबवी है, मिजाज नबुवत, ये नबुवत है किसी से इंतकाम ना ले। और मैं आमतौर पर ये कहा करता हूँ कि खैरुल इंतकामी अल अफ़्व, खैरुल इंतकामी अल अफ़्व। अगर किसी से इंतकाम लेना है, बदला लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें? गालियां देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसका हाथ पांव तोड़ डालें। इससे ज्यादा क्या कर सकते? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा मार सकते, मार डालें। लेकिन अल्लाह ताला इंतकाम लेगा तो अपनी शान इंतकाम लेगा। इसलिए फरमाया खैरुल इंतकामी अल अफ़्व, बेहतरीन अगर किसी से इंतकाम और बदला लेना चाहते हो क्या करो? माफ कर दो, अल्लाह के हवाले करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे सहाबाए किराम ने भी यही फरमाया कि या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं जो है हम उसका सर काट डाले। ये एक एतबार से मुनाफिक था, लोगों के दरमियान के अंदर मुसलमानों के साथ में दिल का मुनाफिक था और यहूदी था, यहूदी भी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर में भी आता रहता था। तो इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 सूरतों के अंदर में बयान फरमाया। बात को मुख्तसर करते हुए कि सूरतुल फलक मक्कियतुन औ मदनियतुन, सूरह फलक मक्की है या मदनी है। मक्की और मदनी का मतलब ये है हिजरत से पहले जो कुरान पाक नाजिल हुआ वो मक्की, नाजिल हुआ वो मदनी। इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए। फतेह मक्का के वक्त में आए, सुलह हुदैबिया के वक्त के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस वक्त में जो कुरान पाक नाजिल हुआ, ये कुरान कब नाजिल हुआ? हिजरत के बाद। इसलिए कहला गया मदनी। और बाद लोग ये कहते हैं कि जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ वो मक्की और मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ वो मदनी। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने किसमें की हुई है? नुज़ूल के एतबार से। इसी जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने किसमें की हुई? हम मक्की मदनी जानते हैं। लैली नहारी, दिन में जो कुरान नाजिल हुआ वो लैली और रात में जो कुरान नाजिल हुआ वो, दिन में नाजिल हुआ वो नहारी और रात में नाजिल हुआ वो लैली। इकामत की हालत में नाजिल हुआ वो हज़री और सफर की हालत में नाजिल हुआ वो सफरी। इस
इसके अलावा 4 आयतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में इनका लिखना है कि ये फिजाई है, फिजाई, न जमीन पर न आसमान पर। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 आयतें नाज़िल कर दी। देख लेना अल-इत्कान फी उलूमिल कुरान के अंदर में देख लेना 4 आयतें हैं। तो इसको कहते हैं फिजा, फिजा के अंदर वो नाज़िल हुई। खम्स आयतें, 5 आयतें हैं। नज़लत हादिही वल्लती बादहा, ये सूरत और उसके बाद वाली सूरत नाज़िल हुई लम्मा सकरा लकी दुलिल यहूदी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लबीद यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिहर किया, जादू किया। सिहर तो मुख्तसर यूं समझो कि ऐसी चीजें कि जिनके असबाब ज़ाहिरी तौर पर मालूम ना हो उसको कहते हैं सिहर। उसी से बना हुआ है सुहूर, शहरी का जो खाना खाते हैं, अंधेरे के अंदर में खाना खाते हैं, सुहूर कहते हैं उसको। हर वो चीज के जिसका मालूम उसको सिहर कहते हैं। और ये पहले पारे के अंदर में वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफर युअल्लिमूना अन्नास सिहर, ये है सिहर। और तफसीर इब्न कसीर के अंदर में भी किस्म के जो सिहर है, मिस्री और हिंदी और बंगाली और न मालूम कहाँ सूदानी वगैरह सब कुछ तफसीर लिखी हुई है सिहर। जिसके ज़ाहिरी तौर पर असबाब मालूम ना उसी को क्या कहते हैं, सिहर कहते हैं। गीबत और चुगली, उलमाए किराम ने इसको भी सिहर के अंदर में लिखा है। ये भी किस्म का सिहर। एक आदमी फारिगुल बाल का, उसके ज़हन के अंदर में कुछ भी नहीं था, कोई आपका मुखालिफ गया और उनका ज़हन खराब कर दिया, तो गया उसने इसके ऊपर में सिहर की। बहुत से असबाब, एक बादशाह था, उसका लड़का था, और एक हज्जाम था नाइक, उसका लड़का था। दोनों के दरमियान में दोस्ती थी, दोनों साथ में घूमने फिरने के लिए जाते थे। बादशाह ये नहीं चाहता था कि हज्जाम के साथ में जो है मेरा लड़का दोस्ती करे। बहुत समझाया, दोस्ती कोशिश की, लेकिन दोस्ती टूटी नहीं। एक बुड्ढी ने बेड़ा उठाया कि मैं कर दूं, उनके दोनों के दरमियान में दुश्मनी मैं कर दूं। जिस जगह के ऊपर में जाकर के बैठते थे वो दोनों, तो वहां जाकर के ये गोबर के जो ओपले बनाते हैं ना, ओपले हैं मैटिंग घूमे, रोटले कहाँ बना लगाते हैं, कभी दीवारों के ऊपर में भी लगाते हैं, ओपले बना ले तो वहाँ बनाना शुरू कर दिया। वो दोनों वहाँ पर बैठते हैं, एक मरतबा बना करके रखते हैं, दिन भर सूखते हैं, फिर दूसरे दिन उसको उल्टा करते हैं। दूसरी यहाँ तक पूरा जो है एक कढ़ाई भर जा रहा, इतने ओपले जो सूख गए। अब वो दूर जो है उस बुड्ढी ने कढ़ाई के अंदर में ओपलों को भरा। अब सर के ऊपर में उठाने के लिए उसको ताकत नहीं थी। वो जो 2 लड़के बैठे हुए थे, एक बादशाह का लड़का है, हजम का लड़का, अरे बेटे जरा उठा दो। जाहिर बात है कि बादशाह का लड़का भूल जाएगा। उसके अपने दोस्त का को कहा कि जा जरा वो बुड्ढी का जो कढ़ाई है उसके सर के ऊपर में उठा, उसने उठा दिया। अब वो कढ़ाई हजम के लड़के के साथ में आई, जहाँ पर बादशाह का लड़का बैठा हुआ था वहाँ हजम का लड़का बैठ गया। तो बुड्ढी ने खड़े होकर के यूं कहा हजम के लड़के को कि बेटा जो बात उसको मैंने बताई है इसको बताना नहीं, जो बात मैंने तुझे बताई है इसको, हालांकि कुछ भी नहीं कहा था उसने। तो बादशाह के लड़के ने कहा कि क्या बताया भाई, कुछ भी नहीं बताया, मेरे सामने तो क्या करके गई कि तुझको जो पता है इसको नहीं पता। इसी के अंदर में दोनों की दुश्मनी होगी। ये भी सिहर है, ये भी क्या एक किस्म का सिहर है। अभी वक्त तफसील का नहीं है। फटकड़ी जानते हैं, फटकड़ी के पानी से लिखो कागज के ऊपर, जो भी लिखना हो लिखो। हजरत मौलाना सुलेमान साहब दामद बरकातुहू दिए हो, जो भी लिखना हो लिखो। और उसके बाद में सूख जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, एकदम से कागज सादा लगेगा, सादा कुछ भी नहीं। उसको आग के ऊपर में गर्म करो तो जो लिखा हुआ है वो काले हुरूफ के अंदर में जाहिर होगा। काले हुरूफ में तर्जुमा कर, अभी नहीं कर जाते तर्जुमा कर, मिटेगा नहीं। अब उससे भी आदमी जो है अपनी दुनिया बना सकता है। तफसीली बात नहीं है। और क्या उसे कहते हैं करवा डाल,
कागज लिया तो कागज लाना, बातों बातों के अंदर उसका कागज लेने देता है, जो लिखा हुआ कागज होता है उसी को दे देगा, जब जरा गर्म करके ला इस बात पर रखो, वो लिखी हुई चीज ऊपर की, समझे। लम्मा सहारा लगे यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू किया, फी वतरी या वतरी, ताकि सुकून के साथ और ताकि फतेह के साथ, वही जो जानवर की जो ये रग होती है उसी में बिही कहता असर होता मुद्दत, उसके अंदर में 11 गिरे लगाई थी, फअअलमहुल्लाहु बिदालिक, इसकी खबर अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी, वो भी महल्ली ही, और जो जादू की चीजें जहाँ रखी गई थी उसकी जगह भी बता दी गई, फवक़ दिया बैन यदैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस लबीद बिन आसम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर किया गया, व उमिरा बिन ताअव्वुज़ बिस्सूरतैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप इन दो सूरतों से जो है अल्लाह की पनाह मांगो। अब ये दो सूरतों की फजीलत भी है, सुबह के अंदर में दोनों सूरतों को पढ़ना चाहिए, फजर के बाद में, मगरिब के बाद में भी पढ़ना चाहिए। आम तौर पर जितने भी अमलियात, जितने भी वजीफे हैं हमारे यहाँ सुबह के अंदर में पढ़ने का एहतमाम होता है, मगरिब के बाद में नहीं पढ़ते। सूरह यासीन में फजर के बाद में पढ़ते हैं, मगरिब के बाद कोई नहीं पढ़ता, 2 मरतबा पढ़ना चाहिए, फजर की बात पढ़ना चाहिए और मगरिब के बाद पढ़ना चाहिए। उलमाए किराम ने लिखा है कि सुबह के औरात और वज़ाइफ का असर मगरिब तक रहता है और मगरिब का असर सुबह तक रहता है, इसलिए वो मिशका शरीफ या कोई सुबह, ये सारी चीजें इन्होंने कल्बी के लिए, तमाम इनात कल्बी के लिए है, जो होना होता है वो तो होता है। इसलिए सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर तो कोई परेशान नहीं, फजर के बाद में घर वालों को कहते याद दिला ना मेरे दुआ पढ़ने की शाम तक मौत नहीं आएगी, मगरिब के बाद पढ़ेंगे तो फजर तक मौत नहीं आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस दिन आने वाली होगी उस दिन बुला दिया, तो क्या फायदा हुआ, मौत तो आनी आनी है, तो फायदा क्या है, दूसरी तकलीफों से अल्लाह ताला हिफाजत कर देता है और तमानी में कल भी हासिल हो जाता है, तजुर्बा करें और बिल्कुल यकीन के साथ, कुछ भी है यकीन के साथ, कुछ भी तकलीफ नहीं होती। ये औराद और वादा ये सूरतें, 2 सूरतें ये सुबह से पढ़नी चाहिए। फकाना कुल्लमा क़रा आयतन मिनहुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में से कोई भी आयत जब पढ़ते, इन हरुदतुल क़ल्ब, गिरा को खोलते, गिरा खुल जाती, वह वजद खिफ़तन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन के अंदर में हल्कापन महसूस करते, हत्ता इन हकिल हुकुदु कुल्लुहा, यहाँ तक के जितने भी गिरहें थी वो सब की सब खुल गई, वो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, कअन्नमा नुशिता मिन इकाल, ऐसा लग रहा था, इकाल रस्सी को कहते हैं, ये आपने देखा होगा कि अरब लोग वो जो सफेद रुमाल पहनते हैं और सफेद रुमाल के ऊपर में काली रस्सी बांधते हैं, ये काली रस्सी जो है ये वहाँ के नौजवान लोग बांधते हैं, शेख और मसाइक लोग वो इकाल नहीं पहनते। आप देखना जितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, टुकड़ा है, सर के ऊपर में रुमाल तो डालते हैं लेकिन वो रस्सी नहीं डालते खाली, एक जैसे नौजवान टिप टॉप करते हैं इस तरीके से वो नौजवान एक फैशन है, इकाल उस रस्सी को कहते हैं। कान्नामा मुशीबत मिन इकाली, ऐसा लगता है कि बंधी हुई रस्सी के अंदर में उनको खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आम तौर पर हम इसका तर्जुमा करते हैं, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। आम तौर पर यही तर्जुमा करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू का तर्जुमा है, उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है कि रहमान, रहमान का माना सही है, बड़ा रहम करने वाला, और रहीम का माना निहायत मेहरबान, वो सही है। दुनिया के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाते हैं सब पर, काफिर पर, मोमिन पर, जानवरों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, सबके ऊपर में अल्लाह ताला रहम फरमाता है। तफसीर राज़ी के अंदर में तो वहाँ पर एक सांप काई के अंदर में और ये बिच्छू वहाँ पर पहुँचा, जुम्मन मिस्री भी वहाँ पर पीछे और अल्लाह ताला ने उसकी बिच्छू ने सांप को काटा, ऐसा काटा कि वो सांप ही मर गया। अल्लाह तबारक व तआला रहमान रहीम, इसी का उन्वान हज़रत मुफ्ती अहमद साहब कानपुरी दामत बरकातुहू ने इलत्ताअती का उन्वान बना करके किस्सा लिखा हो, ताअत और इताअत की था।
दुन्नु मिस्री ने जब उस नौजवान को समझाया तो नशे में था, जब इफाका हुआ और होश के अंदर में आया तो उसको समझाया, मैं देखो तेरे साथ में ऐसा मामला हो। तब उसने कहा कि जब एक गुनहगार के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ये मामला है, तो अगर मैं अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करूं तो फिर अल्लाह का क्या मामला हो। वहीं से उसने तौबा कर ली। तो रहमान का तर्जमा लिखा हुआ है मुफ्ती तकी साहब ने, सब पर रहम करने वाला। रहमान का तर्जुमा सब पर रहम करने वाला, और रहीम का तर्जुमा बहुत रहम करने वाला, या सब पर रहम करता है और वहाँ आखिरत के अंदर में सिर्फ ईमान वालों के ऊपर में रहम करेगा, बहुत रहम करेगा। ये तर्जुमा लिखा हुआ किसने? मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकत। कुल अऊज़ु बि रब्बिल फलक कह दो। अब ये कुल का जो लफ्ज है इसके बारे में भी हजरत उबई ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि असल में पनाह जो मांगने के लिए कहा गया है वो अऊज़ु बि से शुरू होता है। अऊज़ु बि रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बि रब्बिन नास, वहां से शुरू होती है पनाह। कुल तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इस तौर पर कहो और पनाह मांगो। तो हजरत उबई ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुल कह करके पढ़ने का, तो हम भी कुल कह करके पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने यही कहा, कुल अऊज़ु बि रब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास, इसी तरीके से मुझे सिखलाया था और मैं यही पढ़ता हूँ। तो उबई ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि जैसा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुना, मैं ऐसा ही पढ़ता हूँ। तो कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास कह दो, मैं पनाह मांगता हूँ रब्बिल फलक। फलक, फलक का माने फाड़ना, फालिकुल इस्बाह का लफ्ज भी आता है। फालिकुल इस्बाह, सुबह को फाड़ने वाला। रात का अंधेरा है और रात का अंधेरे को खत्म करके सुबह को नमदार करता है, वो फाड़ करके लाता है। फालिकुल हब्बी वन नवा, दाना को भी फाड़ता है, और ये हब यानी दाना, और नवा यानी गुठली, खजूर की जो गुठली होती है कितनी सख्त होती है, लेकिन जब वो जमीन के अंदर में जाती है उसको पानी मिलता है तो उसकी वजह से कोपन निकलती है। ये फाड़ने वाला कौन है? ये है अल्लाह। फालिकुल इस्बाह, सुबह का रब है। तो अस्सुबही, सुबह का रब और मालिक। मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम चीजों की बुराई से जो उसने पैदा की। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की हुई है, इन तमाम मखलूक की बुराई से पनाह मांगने के लिए हुक्म दी। मिन हैवान, ये मिन बयानिया है, बयान के लिए सीधी ने ये जो मिन लाया होता है मिन बयानिया है, यानी मा खलक का बयान। मिन हैवान मुकल्लफ व गैर मुकल्लफ, हैवान चाहे मुकल्लफ हो या गैर मुकल्लफ। मुकल्लफ हैवान कौन? इंसान। इंसान हैवान नातिक, मंतिकी कहते हैं बोलने वाला जानवर, हैवान नातिक, और जिन्नात मुकल्लफ, वो गैर मुकल्लफ जो मुकल्लफ नहीं है वो भी, वो जमाद, और कोई पत्थर है, जमाद है, यानी जिसके अंदर रूह वगैरह नहीं है, तस्सुम जैसा कि जहर वगैरह, और उसके अलावा तमाम चीज। वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, मैं पनाह मांगता हूँ गासिक। गासिक कहते हैं रात को, और सियूती ने इसके दो माने बयान किए। गासिकिन के दो माने बयान किए, और रात के अंधेरे के शर से जबकि रात छा जाए, ऐ अल-लैली इदा अज़ला, अल-लैली इदा अज़ला, यानी रात का अंधेरा जबकि अंधेरा छा जाए। या तो दूसरी तफसीर है अविल कमरी इदा का, रात के वक्त के अंदर चांद निकलता है तो चांद की वजह से भी रोशनी होती है, लेकिन सूरज को गुरूब हो गए, चांद निकला तो रोशनी है, लेकिन अभी रात के वक्त के अंदर में चांद भी गुरूब हो जाए तो फिर अंधेरा छा जाएगा। इदा अज़लम अविल कमर इदा, आम तौर पर जितनी भी शरारतों की बातें होती वो रात के अंधेरों के अंदर में होती, चोरी भी अंधेरी रात के अंदर में होती, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, दूसरी बुराइयां भी जो है वो रात के वक्त के अंदर में होती, सब लोग सोए हुए होते। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासा, नफ़्फ़ासा ये फूंकने वाली की शर से, नफ़्फ़ासा ये सवाहिब जादूगरनियां, तनफुज़ु फिल उक़द जो गिराहों के अंदर में फूंकती है। एक है नफस,
اور ایک ہے نفخ. ان دونوں کی تفسیر کے اندر میں اختلاف ہے. پہلے یوں سمجھو کہ نفخ کس کو کہتے ہیں؟ نفخ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ فِي الصُّورِ. نفخ پھونکنے کو کہتے ہیں جس کے اندر تھوک کے چھینٹے نہ ہوئے. چائے بھی اور چائے گرم ہے تو آپ بچے کو ٹھنڈی کر کے پلاتے اس پر تھوک مارتے ہیں, اس وقت میں تھوک نہ نکلے, اس کو نفخ کہتے ہیں. اور تھوکنا بھی اگر تھوک کے چھینٹے بھی اگر ساتھ میں ہیں تو اس کو نفخ کہتے ہیں. نفخ الگ ہے, نفخ الگ ہے. یعنی آپ یہ ساری چیزیں پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر میں دم کر دیں, اور دم کرنے کے اندر تھوکارے یعنی تھوڑا سا تھوک کا اثر بھی ہاتھ کے اوپر میں آئے, پھر اس کو چہرے کے اوپر میں اور بالغ ما بلغ جہاں کہیں بھی ہاتھوں سے وہاں پر پھیر دیں. اچھا, دوسرا علامہ زمخشری وقال الزمخشری, علامہ زمخشری نے لکھا ہے معہو یعنی معری پھونکنے کے ساتھ ساتھ میں تھوک بھی ہو تو بناتی لبید المذکور, جیسا کہ لبید مذکور کی بیٹیوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا. یہ زمخشری جو ہے اس کی کتاب ہے کشاف, 3 جلدوں کے اندر میں زمخشری 3 جلدوں میں ہے. اور کشاف واسطے کہتے ہیں ٹاس کو, ٹاس جو ہوتی ہے ٹاس آج کیا کہتے ہیں کشاف کے اندھیرے کے اندر میں ٹاس مارو تو ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یہ اس نے کھول دیے قرآن کے لغوی معنوں کی قرآنوی صرفی لغوی ساری ترکیب کو کھول دیے. یہ لمبا تھا جار اللہ کشاف کا مصنف تھا جار اللہ زمخشری حرم شریف کے اندر ماں کی بددعا لگ گئی تھی, چڑیا پکڑ کر کے لایا ہوا تھا اور اس کے پاؤں کے اندر دھاگا باندھا تھا, اڑاتا تھا اور پھر کھینچتا, یہاں تک کہ اس کا پاؤں ٹوٹ گئے. تو ماں نے جو بددعا دی کہ اللہ تیرے پاؤں کو بھی چھوڑ. ایک مطلب ایسا ہوا کہ سفر میں جا رہا تھا اور اونٹ کے اوپر میں سے وہ گر گیا تو خراش لگ گئی, اور خراش لگنے کے بعد میں اس کے پاؤں کے اندر میں ساڑا لگ گیا. اس زمانے کے حکیموں اور سرجنوں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا, اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا. یہ جو شیعہ تھا, اس میں بہت زیادہ اہمیت مت دینا, جو تحقیق کرنے لغوی وغیرہ دیکھنا ہو دیکھنا کوئی بات نہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے سر سے جب کہ وہ حسد کرے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا, مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس میں نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس میں رہنی نہیں چاہیے, اس کو کہتے ہیں حسد. فلانے کے پاس میں گاڑی آئی, مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے, یہ ہے حسد. اس کا تو پنچر ہونا چاہیے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے زوال کی تمنا کرنا. اچھا, یہاں تک تو کوئی بات نہیں ہے, یہ حسد یہاں تک اگر ہے دل کے اندر میں چھپایا وہاں تک کچھ نہیں ہے, لیکن سیوطی نے عجیب و غریب تفسیر کر دی اذا اظہر حسد. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ جگہ جگہوں کے اندر میں ایک چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر میں جو سیوطی تفسیر بیان کرتے ہیں, آپ کے اساتذہ نے بیان کیا ہوگا. حسد اگر دل کے اندر میں کوئی بات نہیں, جب اپنے حسد کو ظاہر کریں اس کو کرنے پھر عمل بھی شروع کر دیں. وہ عملت کی مقتضا اور اس کے تقاضے کے اوپر میں عمل بھی کرے, جیسا کہ مذکور جو یہودی تھا لبی اس نے کیا. حاسدین کے اندر میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو معاملہ کیا. وذکر الثلاثة الشامل لها. اچھا, پہلی جب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ما موصول ہے اور اس میں موصول عموم کا تقاضا کرتا ہے. ما خلق یعنی جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے سر سے. اب ساری چیزیں آ گئی, کون سی؟ یہ جو نیچے ہیں, من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد، یہ تینوں آ گئی اس کے اندر، ما خلق کے اندر میں تینوں چیزیں آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیوطی کہتے ہیں وہ ذکر الخلافتی، تین کو ذکر کرنا، کون کون سی تین چیزیں؟ من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد، اور من شر حاسد اذا حسد، ان تینوں کو ذکر کرنا۔ الشامل لہا، اس کو شامل ہے کون؟ ما خلق، ما خلق کا جو لفظ ہے وہ اس کو شامل ہے، تو ان تین چیزوں کو ذکر کرنا بعدہ یعنی ما خلق کو ذکر کرنے کے بعد، جس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ گئی تھی عمومی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا سورہ فلق کے اندر۔ چار چیزیں ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، چار چیزیں، من شر ما خلق ایک، من شر غاسق اذا وقب دو، ومن شر النفاثات فی العقد تین، ومن شر حاسد اذا حسد۔ چار چیزوں سے پناہ مانگنا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے رب الخلق کا ذکر کیا، قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق اپنی ایک صفت کو ذکر کیا، اور جن سے پناہ مانگی جا رہی ہو کتنی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں۔ اچھا، یہ چار چیزیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں، اس سے دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اخروی نقصان نہیں ہوگا، ایمان کا نقصان نہیں ہوگا۔ ایمان کا نقصان ہوگا کس سے؟ شیطان کے ورگلانے سے، شیطان کے دھوکے کے اندر میں آ جانے سے۔ تو سورہ ناس کے اندر میں ایک چیز سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، ایک ہے۔ تو مجموعی طور پر پانچ چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر میں حکم دیا۔ چار صورتوں کا تعلق دنیاوی اور جسمانی چیزوں سے، اور سورہ ناس کے اندر ایک چیز کا جو تذکرہ ہے اس کا تعلق ایمانیات سے، روحانیت سے اور آخرت سے، کہ اگر اس کے ورگلانے کے اندر اگر آ جائیں گے تو ایمان جاتا رہے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یہاں پر طرز دیکھو، وہاں پر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب الفلق ایک صفت بیان کی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار چیزیں۔ اب سورہ ناس کو دیکھو، سورہ ناس کے اندر میں قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کی، یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، یہ بھی اللہ کی صفت ہوئی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، یہ کیا ہوا؟ تین صفتیں۔ کس کی تین صفتیں ہیں؟ اللہ۔ فلق کے اندر میں ایک صفت، اور ناس کے اندر میں تین صفت۔ فلق کے اندر میں پناہ مانگی گئی چار چیزوں سے، اور ناس کے اندر میں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، لیکن چونکہ وہ خطرناک چیز ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صفات بیان کی۔ ابھی دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی، خالق کی۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو، پوری کائنات کو تیر بنا، پوری کائنات تیر، اور تیر بنا کر کے پھینکے تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کیا شکل ہے؟ تو کہا کہ اس کے بغل کے اندر نہ جاؤ، یہاں سے تیر پھینکیں گے اور اس کے بغل کے اندر میں بیٹھا ہو اس کو تو تیر نہیں لگے گا۔ نہیں، بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ کے اندر میں آتا ہے۔ اور مفتی سعید صاحب کی بات جب یاد آئی تو ایک ان کا عمل یہ بھی یاد آیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ یہ صورتیں پڑھتے تھے، فلق اور ناس، اور مغرب کے بعد میں بھی پڑھتے تھے۔ اور عام طور پر نوافل کے اندر میں بھی، دن کے اندر میں کسی نہ کسی نوافل کے اندر میں یا سنن کے اندر میں فلق اور ناس پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مالک، اچھا، خالقہم و مالکہم، لوگوں کا خالق بھی ہے، لوگوں کا مالک بھی ہے۔ خصو بالذکر، لوگوں کا ذکر مخصوص طور پر کیا گیا، تشریف اللہ، ان کی عزت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 جو ہے اللہ تعالیٰ پاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتیوں کے اندر میں دودھ کو جاری کر دی،
ये दूध उसकी गिजा है। अब आदमी चाहे कि नहीं मैं तो इसको मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है और मैं उसको चिकन 95 खिलाऊं या 65 खिलाऊं, ग्रीन चिकन खिलाऊं तो जाएगा? ग्रीन चिकन खाते ही सीधे जाएगा कब्र के अंदर। अल्लाह ताला धीरे धीरे पालते हैं। ये है रब का मान। रब तो अल्लाह ताला रब भी है, अल्लाह ताला मालिक भी है और अल्लाह ताला माबूद भी है। तो मलिक नास, इलाही नास। अच्छा, ये जो रब्बिन नास जो कहा गया रब्बुन नास, फिर उसके बाद में मलिक नास, इलाही नास, ये जो दो जुमले लाए गए तो बदलानी, या तो ये क्या है? दोनों बदल है। किसका बदल? रब्बुन नास का बदल मलिक नास और इलाही नास। और सिफतानी, या तो फिर रब्बुन नास की सिफत है कि लोगों का रब, कि जो लोगों का मालिक भी है और लोगों का माबूद भी है। और अत्फा बयानी, अत्फा ये तस्निया का सीखा है। तस्निया का सीखा है, असल में क्या था? इजाफा से पहले है अत्फा नी, क्या अत्फा ने? हाँ, ने नहीं बोले, मैंने कहा कह नहीं ने नहीं बोले। यदरिबु यदरिबान ने, तुमको मारसे ने यस नहीं, एक तक जगह में कहाँ पर? वो भी कश्ती में सवार हुए तो बिस्मिल्लाह मजरेहा, मुंह से नहीं, से नहीं है, ठीक है? तो अत्फा बयानी, इसमें से नूने आराबी गया, नूने आराबी गया और अपनी अलामत और निशानी छोड़कर के गया तस्मिया का नहीं। दो दोस्त थे, मस्जिद के ओटले पर बैठते थे, ईशा की नमाज के बाद दोनों बैठते थे। एक मरतबा ऐसा देखा, एक दोस्त बैठा हुआ है और दूसरा दोस्त नहीं। अब दूसरा दोस्त क्यों गया? कि शादी हुई तो करते, उन्होंने अरबी की गए थे करते, पर अलामत और निशानी के तौर पर इसको छोड़ा गया। दोनों बैठते थे, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई, तो ये अलिफ जो है तस्निया तालीम है, ये अलामत और निशानी है किसकी? कि इसकी शादी नहीं हुई। इजाफत का माना क्या है? निस्बत करना, शादी करना। ये अत्फा बयान, ऐसे तजुर्बे छोड़ने पड़ते हैं ताकि जो गिजा खुशी खुशी खाई जाती है वो जिस्म को लगती है। मैं इनको कहा करता, जो गिजा खुशी खुशी खाई जा रही है, जो पसंद पड़े वही खा, जो पसंद ना हो, बासी रोटला हो और दूसरे दिन की जो है दाल हो, गरम की हुई हो, और खट्टा कस्टर हो, थोड़ी जमा हुआ, वो लगता नहीं है दिल के अंदर। जो गिजा खुशी खुशी खाई जाती है वो जिस्म में लगती है, और जो चीज खुशी खुशी पढ़ी पढ़ाई जाती है तो वो याद रहती है, जहन करने में याद रहती है। मैं बहुत सी मरतबा अपने पास पढ़ने वालों को कहता हूँ कि तुम कभी कभी अकेले अकेले हंसोगे, कभी अकेले अकेले हंसोगे। अभी थोड़े दिन पहले मौसम बहुत हंसा, बहुत हंसा, बहुत हंसा। और शादी हुई 10-15 दिन हुए, मालूम नहीं कि बापू के पास में ले, बापू के पास में ले, बापू ने कहा अकेला के कराई नहीं। तो मैं उनको बताता हूँ, यहाँ तो कोई औरतें नहीं है, यहाँ औरतें तो नहीं है। अच्छा, तो औरत को करेगा कौन? उसका शौहर, उसका शौहर करेगा। अब दूसरे के ऊपर में डाउट करने की क्या जरूरत है? तो इसकी वजह से वो हंसते। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह तुम बाहर में जाकर भी अकेले अकेले हंसोगे, अकेले अकेले, ऐसा होता है। तो अत्फा बयान, ये अत्फा बयान है। और क्या हो गया? अत्फा बयान व अबहर मुदाफिले को जाहिर किया फीही मानी दोनों के अंदर मलिकिन नास, इलाहिन नास है, ज़ियादतन लिल बयान, बयान को वाज़ेह करने के लिए। अब आई पर इससे पनाह मांगी जा रही है। अल्लाह की 3 सिफात बयान की, इसलिए कि मद्दे मुकाबिल में खतरनाक है। कौन? गजब का दादा का पर्दा, गजब का दादा का पर्दा का कौन? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये खन्नास वसवसा डालने वाले के शर से, यानी शैतान से। यहाँ पर उसको मुवस्विस नहीं कहा, वसवसा डालने वाला नहीं कहा, मस्दर लाए, मस्दर। फशैतानु सुम्मिया बिल हज़्फ़ि, हज़्फ़ यानी मस्दर। शैतान का नाम रखा गया किससे? वसवास से, यानी मस्दर से।
اور اس کی مثال دیتے ہیں اس کے اندر میں نحو کے اندر میں کہ بھئی اگر مبالغہ کرنا تشبیہ کے اندر میں کہ زید عدل یعنی زید تو صرافہ انصاف ہی انصاف ہے، اس طریقے سے شیطان کیسا ہے؟ صرافہ وسوسہ ہی وسوسہ ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک، لکثرتی ملابستی ہی لہو، وسوسہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے۔ الخناس، خناس پیچھے ہٹنے والا، اتنا زیادہ کوئی پہلوان بھی نہیں، اتنا زیادہ پہلوان بھی نہیں، سمجھے؟ لڑائی ہوئی تو لڑون ہے، لڑنا تاکہ ہاتھ کے اوپر 1 منٹ آئی ہو کہ ہوئی ابھی ہتھیار لے کر کے میں آتا ہوں، خیر ہو گیا، تم 4-5 ہو گئے، میں اکیلا تمہارے پاس میں ہتھیار لے کر کے آتا ہوں، خیر ہو گئی، میں آتا ہوں، تب جا کر کے سو گئے، ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ شیطان گھر جا کر کے سو جاتا ہے کہ جو آدمی صبح شام دعائیں پڑھتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نگرانی میں پھر آ جاتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے بھی کہتا ہے کہ اس کو مت جلا نہیں نا، یہ تو پڑھنے کا نام چھوڑتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا کہ اس نے صبح میں دعا پڑھی ساری طرف سے جو اس کی حفاظت کر لی گئی تو میں کیا کروں، میرا کچھ چلتا نہیں۔ یہ من شر الموسوس فی صدور، لوگوں کے دلوں کے اندر میں جو وسوسہ ڈالنے والا، یہ ہو گیا ذپی مزیان من شر الوسواس الشیطان سمی بالحذف لکثرة ملابسہ له الخناس یانه یخمس ویتأخر عما ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ دلوں سے مراد ظرف بول کر کے یہاں پر مراد لیا گیا مضروع، سینے بول کر کے مراد لیا گیا دل، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے۔ بیان للشیطان الموسوس، یہ وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے اس کا بیان ہے انہ جنی واحد ہے، جنی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جنیوں کی جمع ہے جنات، جنیوں کی جمع جنات ہے۔ اردو کے اندر میں جن واحد ہے اور جنات جمع ہے، اردو کے اندر جن واحد اور جنات جمع ہے، اور عربی کے اندر میں جنی واحد اور جن یہ جمع ہے۔ تو قوله تعالی شیاطین الانس والجن، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کے اندر میں ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں کے شیاطین اور جناتوں کے شیاطین، او من الجنۃ بیان لہم، یا من الجنۃ جو اس کا بیان ہے، والناس پہ عطف علی الوسواس، اور من الجنۃ والناس کا عطف کیا گیا کہاں پر؟ وسواس کے اوپر۔ وعلی کل بغض، یعنی سیوطی کو بھی معلوم تھا کہ وقت ہو رہا ہے، اس لیے بات کو انہوں نے بھی مختصر کر دیا۔ وعلی کل، مولانا سلیمان صاحب دامت برکاتہم کا دیا ہوا وقت ختم ہو رہا ہے، سیوطی کو بھی معلوم تھا کہ موضوع اتنا جو وقت دیا۔ وعلی کل یشمل صدر لبید و بناتہ المطلوب، بہر کے اس کا مختصر لمبا کر کریں گے یہ لبید کے سر کو اور اس کی لڑکیوں کا سر جو ذکر کیا گیا اس کے شامل ہے۔ لیکن اعتراض یہ ہوا کہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کیسے وسوسہ ڈالے؟ انجیکشن وَأُرِدَ الْأَوَّلِ، پہلے کے اوپر میں اعتراض کیا ہے۔ پہلا کون سا؟ انسان جو وسوسے ڈالتے ہیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت نہیں دی، ان الشیطان یجری مجری الدم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی کہ وہ رگوں کے دوڑنے کی جگہ کے اندر میں ایک کتاب ہے وقایۃ الانسان من الجن والشیطان، وقایۃ الانسان من الجن والشیطان، زکیم کتاب ہے، شیخ عبدالسلام بالی دامت برکاتہم سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ شیطان
इसी के दिमाग के ऊपर में जाकर के रब पकड़ करके बैठ जाता है। उन्होंने लिखा वो किताब विकायतुल इंसान मिनल जिन्नी वशैतान। ताकि समय दर्द रहता है, इधर गया उधर गया, मालूम क्या क्या करवाए। लिखते हैं कि जब MRI करने के लिए वो जाता है या CT स्कैन करने में बॉक्स में डालते हैं, जिंदा कब्रिस्तान के अंदर डाल देते हैं, कब्र के अंदर में MRI यानी कि डाल देते हैं। उस वक्त में वो शैतान वो जो रग दबाई हुई होती है उस रग को खोल देता है, हट जाता है। अब MRI की मशीन के अंदर जब जाएगा तो फिर रिपोर्ट में नहीं आएगा। अब फिर जैसे बाहर निकलता है तो फिर उसके बाद में वो रग पकड़ करके बैठ जाएगा। ये लिखा हो, ये इंसान को, इस शैतान को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी हुई है, किताब पढ़ने के काबिल है, पढ़नी चाहिए। तो एतराज कहाँ हुआ है बिअन्ना नास ला युवस्विसु फी सुदूरिहिम नास, के लोगों के दिलों के अंदर में लोग वसवसे नहीं डाल सकते जैसा शैतान डालता है। इन्नमा युवस्विसु फी सुदूरिहिम अल जिन्नु, अब ये जिन जमा का सीखा है, ऊपर में जिन्नी था नहीं, जिन्नी का, अब ये जिन जो है वो जमा का सीखा है। तो जिन्ना तो यकीनन वसवसा डालते हैं लोगों के दिलों के अंदर में जिन्ना, एक नहीं बहुत से जिन्ना। वो उजीब, इसका जवाब दिया गया कि बिअन्ना नासु युवस्विसुन अयदन, ये जवाब दिया गया कि लोग भी वसवसा डालते हैं। बिमाना यलिकु बिहिम हिद्दा, मतलब ये है कि उनकी साया निशान जाहिर करने में जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो तसील वसवसतुहुम इलल कल्बी, फिर उनका जो वसवसा होता है वो दिल तक पहुंचता है। व तथबुतु फीही बितरीक़िल मुअद्दी, और दिल के अंदर में वसवसा जम जाता है इस तौर पर कि वो उसको गुमराह करने तक पहुंचाता है। वल्लाहु अअलम। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में सूरह फातिहा है, और मेरे एतबार से जो है वक्त अभी ज़्यादा हो गया है, तो आपके उस्ताद नतीजा है वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मैं इस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और खुद पढ़ा दूसरा होता कि सब जाके सूरह फातिहा भी पढ़ा दी। सूरह फातिहा की मक्की है, सूरह फातिहा मक्की है, सबको आयात 7 आयतें हैं। बिल बस्मला, बिस्मिल्लाह के साथ। इन कामिल मिनहा, अगर उसको सूरह फातिहा में से माने तो पहली आयत हो गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सातवीं आयत कौन सी? सिरातल लदीना, आखिर तक सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। व इल्लम तकुन मिनहा, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह फातिहा का जुज़ न माने तो फिर वो 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। कहाँ पर? फस्साबिअतु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये 7वीं आयत हो जाएगी। व युक़द्दरु फी अव्वलिहा, और इस सूरह फातिहा के शुरू के अंदर में मुकद्दर माना गया है। मुकद्दर माना गया है पोशीदा माना गया है, मुकद्दर यानी पोशीदा। मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे कि एक आदमी ने कोई फेल देखा, कोई भी फेल देखा, तो उस्ताद ने बताया कि ये फेल है, इसके अंदर में हुआ की ज़मीन पोशीदा है, हुआ की ज़मीन पोशीदा है, मुकद्दर है। तो वो हमारे तुम्हारे जैसा कोई होगा बेवकूफ़, तो काटने लगा 5, 15, 20 शब्दों के बाद में कहीं हुआ निकल आए। तो यहाँ पर मुकद्दर है, यहाँ पर पोशीदा है, समझे। आमतौर पर कहते हैं कि असल में ये ना, तो मैं पूछता हूँ कि असल में यानी कब तुम्हारी पैदाइश से पहले, असल में यानी कब? जलालेन वाले कहता असल में ये था, असल में कवल था। असल में यानी क्या? मौलाना के इदारा कायम करने से पहले, असल में कबल तालीम से पहले जी। असल में कवल था, मालूम नहीं क्या था। तो अच्छा, ये वही अव्वल कुलू यानी तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब जो सूरह फातिहा के अंदर में तौहीद भी है, उसके अंदर में रिसालत भी है, उसके अंदर में आखिरत भी है। तो जो कुरान का जो मंशा मकसद है तौहीद, रिसालत और आखिरत का, वो पूरा इसके अंदर में मौजूद है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि पूरा कुरान पाक के अंदर में वो सूरह फातिहा कहता है।
اور اس سے بڑھ کر کے لوگ اور بھی بیان کرتے ہیں تو पूरा सारा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर कहते हैं वो बाकी नुक्ते के अंदर है, इस तरीके से कहते हैं। तो खोलेंगे तो निकले जैसे वो काटने से वो हुआ की जमीन निकले थे निकले। कुलू लियकुन मा क़ब्ल इय्याका नअबुदु मुनासिबन लहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। ये किसका है? बंदे का कौल है। इय्याका नअबुदु यानी व इय्याका नस्तईन, तो ये बंदे का कौल है। कुलू लियकुन मा क़ब्ल इय्याका नअबुदु मुनासिबन लहु, ये बंदे का कौल है तो मुनासिब हो जाए। कुलू का हो कि तुम का हो, तमाम जहान का पालने वाला कौन है? अल्लाह। रब्बुल आलमीन की तफसीर के अंदर में शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये मजर्रा शमसिया जो है, मजर्रा शमसिया है सूरज मंडल, गुजराती में क्या कहेंगे? सूरज मंडल, चांद सूरज जमीन सितारे, मजर्रा शमसिया। कायनात के मुकाबले में मजर्रा शमसिया की हैसियत ऐसी है कि बहुत बड़ा चटियल मैदान हो और उसके अंदर में प्याज का छिलका मालूम पड़े, बहुत बड़े चटियल मैदान के अंदर प्याज का छिलका, ये हैसियत है कायनात के मुकाबले के अंदर। गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी, और उसी से मोबाइल का नाम भी रख दिया गैलेक्सी। पूरा नहीं होगा, जिंदगी खत्म, जिंदगी जो कम पड़े 24 घंटे के अंदर 25 घंटे मोबाइल में लगाओगे फिर भी उसका प्रोग्राम पूरा होने वाला नहीं। वही तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम का तर्जुमा क्या करोगे? मुफ्ती तकी उस्मानी का सब पर मेहरबान और रहीम का माना बहुत मेहरबान, बहुत ज्यादा मेहरबान। मालिक यौमिद्दीन, मालिक भी पढ़ा गया और मलिक भी पढ़ा गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हदीस के अंदर है कि ये जो सूरह फातिहा है, तिरमिज़ी शरीफ की भी रिवायत है कि मेरे और बंदे के दरमियान के अंदर में आधा तकसीम कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन हमिदनी रब्बी अब्नी अलैहि रब्बी मज्जदनी हमिदनी अब्दी और मज्जदनी अब्दी और अफना अलैहि। ये कहा जाता है बंदे ने ऐसा किया वैसा किया। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इय्याका नअबुदु ये हादा ली, ये मेरा है, व इय्याका नस्तईन ये बंदे का। आधा आधा हो गया। नखुस्सु बिल इबादती मिन तौहीद व गैरिही, इसी से तौहीद और रिसालत वगैरह साबित होती है। सिर्फ कुरान पाक काफी नहीं, हर जमाने के अंदर में जब भी अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो किताबुल्लाह के साथ में रिजालुल्लाह को भी उठा, अंबिया अलैहिस्सलाम को उठा। इन्हीं के तरीकों के ऊपर में चलने की वजह से हिदायत मिलती है। आदमी हिदायत का सवाल करता है। दिन रात के अंदर में कितनी मरतबा मांगते हैं? फर्ज नमाजों के अंदर कितनी मरतबा मांगते हैं? कितनी मरतबा? नहीं है। कितनी मरतबा? फराइज की कितनी रकातें हैं? 17 और 3 वितर भी वाजिब है। 20 मरतबा कम से कम मांगते हैं। क्या? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसाल इलल मतलूब, इरादे तरीक ने अल्लाह की तरफ निस्बत हो गई तो इसाल इलल मतलूब, और नबी गैर नबी की तरफ हो गई तो रास्ता बता ऐसे ऐसे जाओ ऐसे जाओ ये आओ, और उसके बाद में बोर्ड आएगा फिर दाने मुड़ जाए, तो पहले बोर्ड आगे तो वहीं से दाने मुड़ गए तो उसमें गुमराही का खतरा है। इसमें इरादे तरीक क्या है, और उसके बजाय जो है स्कूटर निकाला, लात मारते हैं स्कूटर, नाम रखते हैं कस्वा, और सुबह सुबह उसी को लात मारते हैं। ठीक मारते हैं ना? ठीक नहीं मारते। किसको मारते हैं? कस्वा। आप सल्लल्लाहु उठने का नाम था। इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम नाजिल फरमाया, हिदायत दे करके। वयुबदलु मिनल लज़ीना बिसिलतिही गैरिल मग़दूबि अलैहिम व हुमुल यहूद, मग़दूबि अलैहिम से मरा यहूद है जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होने की सिर्फ वजह एक ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया और वैसी नाफरमानियां की। लेकिन ये मग़दूब अलैहिम जो कहा गया उनको अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की वजह से। आगे भी आया था जलालैन के अंदर में जिल्द अव्वल के अंदर में एक दिन के अंदर में
70 नबियों को इन्होंने कत्ल कर दिया, 70 नबियों को कत्ल कर दिया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तालिन से भरा नशा, ये गुमराह हो गए। उन्होंने अपने दीन को दीन अबदी समझा, आखिरी दिन समझा, हालांकि उनका दीन अबदी नहीं। यहूद ने भी अपने दीन को दीन अबदी समझा। बाकी ज़्यादा तफसील जो है आपके उस्ताद मोहतरम आपको बताएंगे। मैं इस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और हज़रत मौलाना अब्बास साहब से दरख्वास्त करता हूँ अपनी दुआ से जो है मजलिस को मुकम्मल आखिर दुआ फरमाएं। नहीं दे यार اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری اس مجلس کو جو نورانی اور خیر بابرکت مجلس ہے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کی تفسیر کی گئی، جلالین شریف کا ختم ہوا، ایسے موقع پر باری تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ تو ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما. اے اللہ تو ہم سب کو یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کی ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے اللہ پورے کرنے کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ طلبہ کی، اساتذہ کی، کارکنان کی، مخلصین کی، سب کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما، للہیت پیدا فرما. اے اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما، تیرے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آخر یہ دنیا ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، آخرت میں جانا ہے. اے اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، یا اللہ عالم برزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ وقت پر ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کو اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہم بس اپنے قہر و غضب کو
تیری ناراضگی کو یا اللہ ہم سے ہٹا دے، دور فرما دے یا اللہ۔ تو ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو بہتر قبول فرما۔ حقیقت میں آئے ہوئے بزرگان دین ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برکت نصیب فرمائے، جو ہمیں حاضرانہ غائبانہ سے فارغ ہو کر کھائیں گے 10 منٹ کے اندر فارغ ہو جاوے۔ اگر ضرورت ہو تو وضو فرما لیں اور زیادہ شدت کے ساتھ تقاضا ہو وہی باہر نکلیں، باقی سنتیں پوری ہوتی جماعت کھڑی کر لیں، اس کے بعد فارغ ہونا ہے۔ جی 35 سے پہلے جماعت کھڑی کر لیتے ہیں۔